Hello friends. Now today we will discuss for out of specification new guideline which is published by FDA in May 2022. It means it is on this month only this new guideline is published. If you watch this video from start to end, you will clearly understand what FDA says for this guideline. And in this guideline, I have taken all the wording from US FDA guideline itself. If you really understand this video from first slide to last slide, you can clearly understand exactly what is the requirement of FDA. So let's begin. If you want to subscribe my channel, please subscribe the channel. FDA regulation require that an investigation be conducted whenever an OS result is obtained. So we have to be investigate if any OS result is there. The purpose of the investigation is to determine the cause of the OS result. The source of the OS result should be identified either as an aberration of the measurement process or an aberration of the manufacturing process. So FDA request FDA what FDA is saying, any out of specific result has to be investigated. It may be reason due to the laboratory, it may be latent due to the manufacturing process. Even if a batch is rejected based on an OS result, the investigation is necessary to determine if the result is associated with other batches of the same drug product or other product. Batch rejection does not negate the need to perform the investigation. The regulation requires that a written record of the investigation be made, including the conclusion and follow-up. So FDA said during the OS investigation, if you identify it, you are going to reject the batch. If you are going to reject the batch, it is not going to the market. It does not mean you are not going to investigate this OS because it is not you are going to supply to the market. If any batch is going to reject due to out of specifications valid, the cause has to be checked with other same batches. So we can identify the cause which is identified in this batch, it is associated with other batches, yes, specific to this batch. If it is associated with other batches also, then it is necessary to take action against the batches which you already marketed, and you to revise the process for the coming manufacturing batches. To be meaningful, the investigation should be timely. It should be completed. We have to be specify the time. The investigation has to be completed in 30 days, yet 60 days. You have to be specified. It should be timely, unbiased. It should be not biased to the release the batches. Well documented and scientifically sound. The first phase of such an investigation should include an initial assessment of the accuracy of the laboratory data. Whenever possible, this should be done before test preparation are discarded. So the investigation has to be started before test preparation. We should not discard the test preparation. It should be started before the discarded of the test preparation. This way, hypothesis regarding a laboratory error or instrument malfunction can be tested using the same test preparation. If this initial assessment indicates that no causative error were made in the analytical method used to arrive at the data, a full-scale OS investigation should be conducted. For contract laboratory, the laboratory should convey data finding and supporting documentation to the manufacturing firm quality unit. The manufacturing quality unit should then initiate the phase 2 OS investigation whenever no clearly causative laboratory error was identified. So if during the phase 1 investigation you identify there is no assignable cause from the laboratory, then phase 2 investigation, that is called full scale OS investigation, has to be done by the QA, that is quality unit. So phase 1 laboratory investigation, what is the responsibility of the analyst? Achieving accurate laboratory testing result. It means एक बार उसने एनालिसिस किया हुआ है तो वो कितने भी बार उस सैंपल को एनालिसिस किया जाए, रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट, शुड बी नॉट चेंज. आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी नॉट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन.
The out of specification doesn't mean it is rated to be laboratory. So sometimes the batch having some issues, so you can get the out of specification. So achieving accurate laboratory testing result, use only calibrated instruments. The analyst should use only calibrated instruments. System suitability requirement should be checked before analyzing test preparation wherever applicable. तो जहां पर भी जैसे लाइक एचपीएलसी में पहले आप स्टैंडर्ड का सिस्टम सुटेबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद ही सैंपल इंजेक्ट कीजिए. सो अंटिल अनलेस आपका सिस्टम सुटेबिलिटी पास नहीं होता है, इट मींस योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. Response of standard should be checked. So when you injected the standard, the response of the standard, so how to check it? You can check the response of the standard from the previous analysis. So you can get what is the response is coming. अगर आप method transfer कर रहे हैं, so you can check the response of the standard from R&D data. So अगर आपका response standard का अच्छा है, इसका मतलब आपका सिस्टम सही काम कर रहा है. Analyst should check the data for its compliance before डिस्कार्डिंग टेस्ट प्रिपरेशन. एनालिसिस कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस चल रहा है, दूसरे दिन आने के पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका डाटा जो है ओके है कि नहीं. अगर डाटा ओके है तभी आपको टेस्ट प्रिपरेशन डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये टेस्ट प्रिपरेशन तब संभाल के रखना है जब तक आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो जाता है और रिजल्ट रिव्यू नहीं हो जाता है. अगर उसके पहले आपने अपना टेस्ट प्रिपरेशन डिस्कार्ड कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. सो आपका टेस्ट प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, आपने कौन सा पिपेट यूज किया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सा यूज किया है, उसके बाद आपने फिल्टर कौन से यूज किए, सब कुछ आपको संभाल के रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो जाता है. इफ एरर एज ऑब्वियस, एनालिस्ट शुड रिकॉर्ड द एरर. अब ड्यूरिंग द एनालिसिस उसको पता चल गया एनालिस्ट को कि यार ये एरर ऑब्वियस एरर है, मेरे से गलती होगी, सैंपल प्रिपरेशन करते समय गलती होगी है, मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क गलत यूज किया है. उसको तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए. इमीडिएटली स्टॉप द एनालिसिस एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर. एनालिसिस स्टॉप करो और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो. अभी हमने जो डिस्कस किया था वो किया था व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनालिस्ट. नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी सुपरवाइजर. ये पूरा वर्डिंग जो है पूरा का पूरा मैंने एफडीए से ही कॉपी किया हुआ है. द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन एज पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर असेसमेंट. अभी सुपरवाइजर का असेसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लेना है. डिस्कस द टेस्ट मेथड विद द एनालिस्ट, कंफर्म एनालिस्ट नॉलेज ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर. सो सुपरवाइजर जो है एनालिस्ट से बात करेगा और उसका नॉलेज समझेगा कि उसको इस टेस्ट प्रोसीजर के बारे में पूरा क्लियर आइडिया है कि नहीं है और उसने जो करेक्ट प्रोसीजर यूज है कि नहीं उसके बारे में बात करेगा. एग्जामाइन द रॉ डाटा ऑब्टेन्ड इन द एनालिसिस इंक्लूडिंग क्रोमोटोग्राम एंड स्पेक्ट्रा एंड आइडेंटिफाइड एनोमोलियस या सस्पेक्ट इंफॉर्मेशन. पूरा रॉ डाटा रिव्यू होना चाहिए, क्रोमोटोग्राम स्पेक्ट्रा चेक करना ही कुछ गलती तो नहीं दिख रही है, यहां पर कुछ ऐसा एबनॉर्मल चीजें तो नहीं हुई है, कोई एबनॉर्मल इंफॉर्मेशन तो नहीं है. वेरीफाइड दैट द कैलकुलेशन यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ डाटा वैल्यू इनटू फाइनल टेस्ट रिजल्ट आर साइंटिफिकली साउंड. सो एनालिसिस हो गया है, अब कैलकुलेशन जो किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं किया, अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट. आल्सो डिटरमाइन इफ अनऑथोराइज्ड या अनवैलिडेट चेंजेस हैव बीन मेड टू ऑटोमेटेड कैलकुलेशन मेथड. अभी अगर कैलकुलेशन मेथड ऑटोमेटेड है तो उसमें कोई अथोराइज चेंज तो नहीं हुआ है जिसके कारण उसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे. मतलब आपका रॉ डाटा तो करेक्ट है बट चूंकि कुछ फार्मूला में अनऑथोराइज चेंजेस कर दिए गए हैं जिसके कारण रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, वो भी चेक करना है. कंफर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं. अगर आपने एचपीएलसी पे लगाया तो उसका प्रेशर ग्राफ चेक करना है, उसका प्रेशर तो नहीं हुआ है या उसमें कहीं बबल्स तो नहीं है, तो एयर बबल्स, तो सारी की सारी चीजें आपको चेक करना है. Determine that appropriate reference standard, solvent, reagent and other solution were used and that they met quality control specification. So जितने भी स्टैंडर्ड, सॉल्यूशन, रिएजेंट, वर्किंग स्टैंडर्ड सब आपको चेक करना है कि वो अंडर देयर जो भी उनका एक्सपायरी डेट है उसके अंदर है कि नहीं है, और जो एसटीपी में लिखा है स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज किया है कि नहीं किया है. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर की. Evaluate the performance of the test method to ensure that it is performing according to the standard expected based on method validation data and historical data. अब यहां तो नहीं है कि हमारे मेथड में कुछ कंसर्न है, जो मेथड परफॉर्म कर रही है वो जो मेथड वैलिडेशन हिस्टोरिकल डाटा उसके हिसाब से तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ कॉलम गलत यूज कर लिया है या कॉलम जो है खराब हो गया है
कॉलम खराब होने के बाद आपको सिस्टम सुटेबिलिटी तो पास हो रहा है, बट वो शायद बाउंड्री में पास हो रहा है। ये सारी चीजें जो सुपरवाइजर है उसको चेक करना है। फुली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व रिकॉर्ड ऑफ दिस लेबोरेटरी असेसमेंट। The assignment of a cause for OS result will be greatly facilitated if the returned sample preparation are examined promptly. अब जैसे ही आपका ओएस हो जाता है, आपके जो भी सैंपल्स हैं, जो आपका सोल्यूशन रखा हुआ है, तो जैसे अपन करते हैं सेम HPLC वाइल, रिफिल HPLC वाइल, देन रीडाइल्यूशन, तो जो भी आपका सैंपल जो आपने प्रिपरेशन किया हुआ है वो सारा का सारा रखा रहना चाहिए। उस रिटर्न सैंपल से आपको बाकी एनालिसिस करना है। सो एग्जामिनिंग ऑफ द रिटर्न सॉल्यूशन शुड बी परफॉर्म एज पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। एफडीए क्या बोलता है? लेबोरेटरी एरर शुड बी रिलेटिवली रेयर। आपको लेबोरेटरी एरर बहुत कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंट एरर सजेस्ट ए प्रॉब्लम दैट माइट बी ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ एनालिस्ट। अगर बार बार आपको लेबोरेटरी एरर हो रहा है, आपके असाइनेबल कॉज ओएस ड्यू टू लैब एरर के कारण मिल रहा है, इसका मतलब है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द एनालिस्ट। पुअर मेंटेन या इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, आपके इक्विपमेंट के कारण एरर हो सकता है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, या केयरलेस वर्क, या एनालिस्ट अपनी खुद से ह्यूमन एरर है, मतलब एनालिस्ट का केयरलेस वर्क है। Whenever laboratory error is identified, the firm should determine the source of the error and take corrective action to prevent reoccurrence. To ensure full compliance with the CGMP regulation, the manufacturer also should maintain adequate documentation of the corrective action. So अगर लेबोरेटरी एरर है, एक तो बहुत ही रेयर होना चाहिए, बार बार हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपके लैब में गड़बड़ चल रहा है, या तो एनालिस्ट ट्रेंड नहीं है, या इक्विपमेंट कैलिब्रेशन प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है, या लोग केयरलेस वर्क कर रहे हैं, और जो भी असाइनेबल कॉज आता है उसका प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेना है, तो जिसके कारण आप प्रिवेंट कर सको आने रिकरेंस को, और सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। इन समरी, व्हेन क्लियर एविडेंस ऑफ लेबोरेटरी एरर एग्जिस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिजल्ट शुड बी इनवैलिडेट। व्हेन एविडेंस ऑफ लेबोरेटरी एरर रिमेन अनक्लियर, ए फुल स्केल ओएस इन्वेस्टिगेशन शुड बी conducted by the manufacturing firm to determine what caused the unexpected result. अगर लेबोरेटरी एरर आइडेंटिफाई हुई है तो आपका इनिशियल रिजल्ट जो इनवैलिड करो, एक्शन लो, दोबारा एनालिसिस करो और बैच को रिलीज कर सकते हो। बट अगर आपको लेबोरेटरी एरर नहीं मिली है तो आपको फुल स्केल ओएस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें क्वालिटी यूनिट इन्वॉल्व होता है, क्यूए का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। So phase 2 scale OS investigation. When the initial assessment does not determine the laboratory error caused, the OS result and testing result appear to be accurate, a full scale OS investigation using predefined procedure should be conducted. अगर इनिशियली आपका लैब एरर नहीं मिला है तो आपको फुल स्केल OS इन्वेस्टिगेशन करना है। The objective of such an investigation should be to identify the root cause of the OS result and take appropriate corrective action and preventive action. A full-scale investigation should include a review of production and sampling procedure and will often include additional laboratory testing. Such investigation should be given the highest priority. Among the elements of this phase is evaluation of the impact OS result on already distributed batches. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको फेज 2 इन्वेस्टिगेशन, लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेज 2 इन्वेस्टिगेशन का कभी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है फेज 2 इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है, स्टेबिलिटी स्टडीज रिव्यू करना है, और आपका जो एडिशनल टेस्टिंग आता है लैब में वो भी फेज 2 इन्वेस्टिगेशन में ही आता है। तो एफडीए गाइडलाइन में क्या बोलता है? हाउ टू रिव्यू द प्रोडक्शन document. The investigation should be conducted by QE, मतलब quality unit, and should involve all other departments that could be implicated, including manufacturing process, development, maintenance, and engineering. In case where manufacturing occur off-site, मतलब आपने कहीं दूसरे प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग किया है, all site potentially involved should be included in the investigation. Other potential problems should be identified and investigated. The record and documentation of the manufacturing process should be fully reviewed to determine the possible cause of the OS. So आपका रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ही रहता है, तो बीएमआर को प्रॉपर रिव्यू करना है, लॉग बुक्स रिव्यू करना है, तो सारे का सारा रिकॉर्ड प्रॉपर रिव्यू करना है। इफ दिस पार्ट ऑफ द OS इन्वेस्टिगेशन कंफर्म द OS रिजल्ट एंड इज सक्सेसफुली
in identifying is root cause, the OS investigation may be determined and the product rejected. अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में कोई असाइनेबल कॉज मिलता है, आपको उसको करेक्ट करना है, ये बैच को रिजेक्ट करना है. However, a failure investigation that extend to other batches या product that may have been associated with the specific failure must be completed. If any material was reprocessed after additional testing, if any material was reprocessed after additional testing, the investigation should include comment and the signature of appropriate personnel including production and QU personnel. QU is the quality assurance या quality unit. OS result may indicate a flaw in production या process design. For example, a lack of robustness in product formulation, inadequate raw material characterization या control, substantial variation introduced by one या more unit operation of the manufacturing process या combination of this factor can be cause of inconsistent product quality. In such cases, it is essential that redesign of the product या process to undertaken to ensure reproducibility product quality. So आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वापस रीडिजाइन करना है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी कंसिस्टेंट निकले. तो यहाँ एफडीए ने रीटेस्टिंग के बारे में बात की है. द सैंपल यूज्ड फॉर रीटेस्टिंग शुड बी टेकन फ्रॉम द सेम होमोजेनियस मटेरियल दैट वाज ओरिजिनली कलेक्टेड फ्रॉम लॉट, टेस्टेड एंड यील्डेड द ओएस रिजल्ट. तो आपका जब रीटेस्टिंग आता है तो आपको जो लैब में सैंपल अवेलेबल है उसी से रीटेस्टिंग करना है, आपको दोबारा सैंपलिंग नहीं करना है. तो रीटेस्टिंग आपको तभी आपको अवेलेबल लैब सैंपल से ही करना है. डिसीजन ऑफ रीटेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट एंड साउंड साइंटिफिक जजमेंट. सो जो रीटेस्टिंग का डिसीजन है वो क्यूए लेगा और उसके पीछे एक साइंटिफिक रेशनल होना चाहिए कि भाई ये असाइनेबल कॉज मिला है इसीलिए मुझे रीटेस्ट करना है. प्री डिफाइंड रीटेस्टिंग प्लान टू इंक्लूड रीटेस्टिंग परफॉर्म बाय ओरिजिनल एनालिस्ट या सेकंड एनालिस्ट या रीटेस्टिंग शुड बी डन बाय 2 डिफरेंट एनालिस्ट. तो आपकी एसओपी में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि भाई रीटेस्टिंग जो है वो सेम एनालिस्ट करेगा या सेकंड दूसरा एनालिस्ट करेगा या इसको 2 एनालिस्ट को ट्रिप्लीकेट करना, वो आपकी एसओपी में क्लियरिटी होना चाहिए. The practice of testing into compliance is unscientific and objectionable under CGMP. The maximum number of retests to be performed on a sample should be clearly specified in SOP. Deviation to SOP not acceptable. अभी आपको OS आ गया तो आप क्या करते हो कि बार बार टेस्टिंग कर रहे हो कि जब तक आपका रिजल्ट कंप्लाइज नहीं करता, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपकी एसओपी में क्लियर लिखना है कि भाई एसओपी में आपको ट्रिप्लीकेट ही करना है. अगर आपने एक बार ट्रिप्लीकेट कर दिया वो फेल हो गया तो आपको रिजल्ट आपको बैच को रिजेक्ट कर देना है. ऐसा नहीं कि जब तक एनालिसिस करते जा रहे जब तक कि रिजल्ट पास का नहीं आता, जब पास का रिजल्ट आता है बोलते बस यही सही है. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपकी एसओपी में क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कितना एनालिसिस करना है और एसओपी से डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है. The retesting of sample should be last decision of an organization if it is failed batch subjected to be rejected. एक बार आपने रिटेस्टिंग का डिसीजन ले लिया, उसके बाद अगर आपका बैच रिजेक्ट होता है, रिजल्ट पास नहीं होता है, तो आपको बैच को रिजेक्ट करना है. Any retesting to be done based on approved protocol, the protocol should describe number of retesting, scientific justification, technical handling data. So कोई भी अगर आप रिटेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल बनाइए, उसको क्यूए से अप्रूव कराइए, उसमें एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दाइए कि क्यों आप रिटेस्ट करना चाहते हो, कितना रिटेस्ट करना, सिंगल करना, ट्रिप्लीकेट करना, एसओपी में क्या लिखा है और उसका टेक्निकल डाटा क्या है जिसको लेके रेफरेंस को लेके आप एनालिसिस करना चाहते हो. इफ लेबोरेटरी एरर आइडेंटिफाइड द रिटेस्ट रिजल्ट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल टेस्ट रिजल्ट. अगर लैब एरर है, आप रिटेस्टिंग करते हो तो आपको इसी रिजल्ट को रिपोर्ट करना है. इफ नो लेबोरेटरी एंड कैलकुलेशन एरर इज आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट टेस्ट, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनवैलिडेट इनिशियल ओएस रिजल्ट इन फेवर ऑफ पासिंग रिटेस्ट रिजल्ट. अगर आपको असाइनेबल कॉज नहीं मिल रहा है, कोई कैलकुलेशन एरर भी नहीं है, तो आप इनिशियल ओएस रिजल्ट को पासिंग रिजल्ट से चेंज नहीं कर सकते हो. जब तक आपको असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है आपको इन्वेस्टिगेशन करना है. अगर आपका रिटेस्टिंग के रिजल्ट्स पास होते हैं तो बिना साइंटिफिक रेशनल के आप जो इनिशियल ओएस है रिजल्ट आया उसको इनवैलिड नहीं कर सकते. Resampling. When all data have been evaluated, an investigation might conclude that the original sample was prepared improperly. तो जो सैम्पलिंग है उसमें कुछ अगर हमको लगता है गड़बड़ है and was therefore not representative of the batch quality, improper sample preparation might be indicated. For example, by widely varied result obtained from the several aliquot of an original
composite. Resampling should be performed by the same qualified validate method that were used for the initial sample. However, if the investigation determined that the initial sampling method was inherently inadequate, a new accurate sampling method must be developed, documented and reviewed and approved by the QU. तो रीसैम्पलिंग, अभी आपने क्या किया, सबसे पहले फेज 1 इन्वेस्टिगेशन किया, आपको कुछ नहीं पता चला। फेज 2 इन्वेस्टिगेशन में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन हो गया, आपको कोई असाइनेबल कॉज नहीं मिला, तब आप क्या करते हो, आप अपना सैम्पलिंग के प्रोसीजर को एक बार रिव्यू करते हो और आपको लगता है कि यार सैम्पलिंग के समय कुछ गलती हुई है, तो आपको दोबारा सैम्पलिंग करना है उसी अप्रूव प्रोसीजर से। बट रिव्यू के दौरान आपको पता चलता है कि आपकी सैम्पलिंग प्रोसीजर में ही प्रॉब्लम है, देन आपको न्यू सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और उसके पीछे एक साइंटिफिक रैशनल लिखना है और उस प्रोसीजर को रिवाइज करके फिर सैम्पलिंग करके फिर उसके बाद आपको ओएस को कंक्लूड करना है। अब आपका एनालिसिस हो गया है, आपको रीटेस्टिंग हो गया है, आपने रीसैम्पलिंग किया है, अब आपका नंबर आया रिपोर्टिंग ऑफ टेस्टिंग रिजल्ट। तो अभी तक अपन ने क्या किया, पहले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें असाइनेबल कॉज नहीं मिला, फिर आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ पर असाइनेबल कॉज मिला या नहीं मिला, उसके बाद आपने रीटेस्टिंग भी कर लिया। अब आपके पास रिजल्ट है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है। सो रिपोर्टिंग ऑफ टेस्टिंग रिजल्ट, फर्स्ट एवरेजिंग, अप्रोप्रिएट यूजेस। अभी एवरेजिंग को दो भागों में यहाँ पर एफडीए गाइडलाइन में दिया है, अप्रोप्रिएट यूजिंग, इनअप्रोप्रिएट यूजिंग। अप्रोप्रिएट यूजिंग मीन्स, अप्रोप्रिएट यूजेस मीन्स, अब आपने क्या किया है कि जैसे मान लो आपने एक HPLC एक सोल्यूशन बनाया हुआ है और उस सेम सोल्यूशन से आप ट्रिप्लिकेट एनालिसिस करते हो, तो उसको एवरेज करते हो, तो वो अप्रोप्रिएट यूजेस है। एवरेजिंग ऑफ द रिजल्ट ऑन होमोजेनियस सैंपल, दैट विल बी सिंगल प्रिपरेशन और मल्टीपेट। सो एक ही प्रिपरेशन बनाया, एक ही सोल्यूशन है और उससे मल्टीपल एनालिसिस किया हुआ है। इन कंसीडर द अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ एवरेजिंग ऑफ रिजल्ट, तो इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट यूजेस। जहां पर एक ही होमोजेनियस सैंपल है, एक ही सोल्यूशन आपने बनाया, उससे बहुत सारे रिजल्ट किए हैं, तो उसको बोलते, उसका एवरेजिंग कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट यूजेस है। इन सच केस लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल एनालिस्ट रिजल्ट शुड बी बेस्ड ऑन द नोन वेरिएबिलिटी ऑफ द मेथड एंड शुड आल्सो बी स्पेसिफाइड इन द मेथड। अभी इस केसेस में भी अगर जैसे मान लो आपको बोला है कि आपको एक प्रिपरेशन करना है और आपको डुप्लीकेट इंजेक्शन मारना है, तो यहां पर प्रिपरेशन एक ही किया है, बट दोनों इंजेक्शन का जो एरिया आएगा उससे जो डिफरेंट टू ऐसे रिजल्ट आएंगे, उसके बीच में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन मेथड से रिलेटेड है, वो वेरिएशन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। कितना वेरिएशन अलाउेबल है, ऐसा आपके टेस्टिंग प्रोसीजर में दिया होना चाहिए। सो अगर आप एक ही सैंपल है और उससे 10 इंजेक्शन कर रहे हो, या एक ही प्रिपरेशन है, अगर यूबी है तो 2 बार रीडिंग ले रहे हो, तो इस तरह का जो एवरेज करते हो, जहां पर होमोजेनियस सैंपल से आप एनालिसिस करते हो, उसको अप्रोप्रिएट यूज बोलते हैं। इनअप्रोप्रिएट यूज किसको बोलते हैं, एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सैंपल प्रिपरेशन। तो आपने क्या किया, एक बैच से 10 सैंपल प्रिपरेशन किया और उसको एवरेज करने बैठे हो, इज कंसीडर द अनअप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ एवरेजिंग द रिजल्ट। इन केस ऑफ ओएस डिफरेंट रीटेस्टिंग डन, वेरिएबिलिटी अमंग द सैंपल शुड बी कैलकुलेट एंड मस्ट बी पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एसओपी। अब जब आप डिफरेंट 6 प्रिपरेशन कर रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, तो उस वेरिएबिलिटी का भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया है कि आपको एवरेज तो आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके पास आ गया है, बट वेरिएशन आप द 6 प्रिपरेशन, एक 90 आ रहा है तो एक 110 आ रहा है, और आप बोलते भाई मेरा एवरेज तो 100 आ गया, मेरा ओके है। ऐसे केसेस में जो आरएसडी है, जो वेरिएबिलिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी होना चाहिए। In the context of additional testing performed during an OS investigation, averaging the result of the original test that promoted the investigation with additional retest या resample result obtained during the OS investigation is not appropriate because it hides variability among the individual result. Relying on average of such data can be practically misleading when some of the results are OS. अभी आपने क्या किया है कि आपने मान लीजिए 6 प्रिपरेशन किया, उसमें से कुछ प्रिपरेशन ओएस है, कुछ प्रिपरेशन ओएस नहीं है, बट आप अगर एवरेज करते हो तो आपको रिजल्ट आउट ऑफ ओएस मिलता है। सो वो बोलता है कि ये जो है ये आपके मिसलीडिंग है, आपके इन्वेस्टिगेशन एंड अदर आर विद इन स्पेसिफिक। इट इज क्रिटिकल दैट द लेबोरेटरी प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल रिजल्ट फॉर एवोल्यूशन एंड consideration by the QU which is responsible for approving or rejecting drug product in process. So आपका जब भी आप टेस्टिंग करते हो तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज को भी देखना है, ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज देख के बैच को रिलीज करना है। अभी हमने बात किया एवरेजिंग। सो एवरेजिंग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब होमोजेनियस सैंपल से करते हैं, इनअप्रोप्रिएट मतलब
जहाँ पर आप डिफरेंस सैंपल प्रिपरेशन करते हो। बट ऐसे केसेस में आपको इंडिविजुअल रिजल्ट को भी देखना वो क्या आ रहा है। अगर उनमें वेरिएशन ज़्यादा है तो आपका वेरिएबिलिटी का एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, अगर उसमें पास हो रहा है तभी आपको बोलना है कि रिजल्ट ओके, अदरवाइज आपको बेस्ट रिजेक्ट करना है। एक नया टर्म आता है आउटलेयर टेस्टिंग। Outlier testing is a statistical procedure for identifying from an array those data that are extreme। अगर मान लो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आउटलेयर टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि उस डाटा को वो डाटा करेक्ट है कि नहीं है। द पॉसिबल यूज ऑफ आउटलेयर टेस्ट शुड बी डिटरमाइंड इन एडवांस। आपकी एसओपी में बहुत पहले से लिखा होना चाहिए कि आउटलायर टेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। दिस शुड बी रिटन इनटू एसओपी फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। The SOP should include the specific outlier test to be applied with relevant parameter specified in advance. The SOP should specify the minimum number of results required to obtain a statistically significant assessment from the specified outlier test। तो USP में गाइडलाइन में आउटलेयर टेस्ट के बारे में भी बात किया हुआ है। आउटलेयर टेस्ट हैव नो applicability in case where the variability in the product is what is being assessed, such as content uniformity, dissolution या release rate determination case। in this application a value perceived to be an outlier may in fact be an accurate result of a non-uniform product। तो आउटलेयर टेस्ट जहां पर आप डिसोल्यूशन है, रिजल्ट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, जहां पर आप 10 या 20 टैबलेट का ऐसे करते हो, डिसोल्यूशन है, इस केसेस में आपको आउटलेयर टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर यूएस FDA गाइडलाइन में या आपके टेस्टिंग प्रोसीजर में या फार्माकोपिया ने ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है जो बताता है कि आपके टैबलेट टू टैबलेट क्या वेरिएशन है। सो आउटलेयर जो रिजल्ट है वो ओएस में जब आप रिटेस्ट करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। आपने अभी यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि आपको रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करना है। अब आपको कंक्लूड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनिशियल ओएस इन्वेस्टिगेशन किया, लैब में किया, फिर फेज 2 इन्वेस्टिगेशन किया, फिर आपने रीटेस्टिंग डिफाइन किया। रीटेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करना है। अब आपको कंक्लूड कैसे करना है ओएस इन्वेस्टिगेशन को। इंटरप्रेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट। सो इन्वेस्टिगेशन हैज रिवेलेटेड। सो यहाँ पर अगर आपको असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई होती है तो अब कंक्लूजन है। तो अगर असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई हो गया तो क्या करना है, इन दोज इंस्टेंट वेयर एन इन्वेस्टिगेशन हैज रिवेलेटेड ए कॉज एंड द सस्पेक्ट रिजल्ट इज इनवैलिड, द रिजल्ट शुड नॉट बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द बैच या लॉट। अब आपको पता है असाइनेबल कॉज मिल गया है तो जो ओएस रिजल्ट है उसको बैच की क्वालिटी एवोल्यूशन के लिए यूज नहीं करना, उसको रिप्लेस करना है। इन वैलिडेशन ऑफ डिस्क्रीट टेस्ट रिजल्ट मे बी डन ओनली अपॉन द ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए टेस्ट इवेंट दैट कैन रीजनेबली बी डिटरमाइंड टू हैव कॉज द ओएस रिजल्ट। सो आपका असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई हो गया, आपने रिटेस्ट किया और आपको रिटेस्ट रिजल्ट है उसको ही रिपोर्ट करना है और आपको बैच का डिसीजन लेना है। In those cases where the investigation indicate an OS result is caused by a factor affecting the batch quality, the result should be used in evaluating the quality of the batch या lot। A confirmed OS result indicate that batch does not meet established standard या specification and should result in the batch rejection। अब आपका असाइनेबल कॉज नहीं मिला है ऐसे केसेस में जहां पर आपका जो डाटा वो बताता है कि ये जो असाइनेबल कॉज है वो आपके बैच को इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो लैब में असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में असाइनेबल कॉज मिलता है और आपको पता चलता है कि ये आपके बैच के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे केसेस में बैच को रिजेक्ट करना है और कंफर्म ओएस है, वैलिड ओएस है तो वहां बैच का रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक असाइनेबल कॉज है, दो जगह असाइनेबल कॉज मिल सकते हैं, एक लैब में असाइनेबल कॉज मिल सकता है, एक मैन्युफैक्चरिंग में असाइनेबल कॉज मिलता है। लैब में असाइनेबल कॉज मिलेगा उसको आप करेक्ट कर सकते हो, रीटेस्टिंग करते हो, बैच रिलीज करते हो। जब मैन्युफैक्चरिंग में असाइनेबल कॉज मिलता है तो यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिक बैच है वो चूंकि ओएस है, उसके रिजल्ट ओएस आ रहे हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग में असाइनेबल कॉज मिला है, ऐसे केस में आपको बैच रिजेक्ट करना है और बैच मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर असाइनेबल कॉज के बारे में जो बात किया है वो दो प्रकार से, एक लेबोरेटरी असाइनेबल कॉज, एक मैन्युफैक्चरिंग असाइनेबल कॉज। अब आपको असाइनेबल कॉज नहीं मिला है, पहले वाले में बताया था कि असाइनेबल कॉज मिला है, अगर लैब में मिला है तो आपको रीटेस्टिंग करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में मिला है तो आपको बैच रिजेक्ट करना है। अगर असाइनेबल कॉज नहीं मिलता है तो यहाँ पर दो केस बताए हुए हैं। फॉर कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन इन केस वेयर एन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट रिवील ए कॉज, सो देयर इज नो असाइनेबल कॉज बट डज नॉट कंफर्म द ओएस रिजल्ट। आपका असाइनेबल कॉज तो मिला है बट आप जितना भी रीटेस्टिंग कर रहे हो वहां आपको पता चल रहा है कि भाई ये ओएस नहीं है, बट इनिशियल जो आपको ओएस रिजल्ट आया उसका असाइनेबल कॉज यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
द ओएस रिजल्ट शुड बी गिवन फॉर कंसिडरेशन द बैच लॉट या। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है उस पर बैच डिस्पोजिशन के डिसीजन के पहले आपको चेक करना है कि जो असाइनेबल कॉज नहीं मिला है फिर भी रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। इन द फर्स्ट केस द इन्वेस्टिगेशन चेंजेस फ्रॉम एन ओएस इन्वेस्टिगेशन इनटू बैच फेल्योर इन्वेस्टिगेशन विच मस्ट बी एक्सटेंडेड टू अदर बैच या प्रोडक्ट that may have been associated with the specific failure। जहां पर आपका असाइनेबल कॉज नहीं मिला है बट रीटेस्टिंग के समय भी आपके रिजल्ट पास नहीं हो रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको बैच को रिजेक्ट करना है। और चूंकि ये बैच रिजेक्ट हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि जो बाकी के बैचेस हैं, जो बाकी के सेम प्रोडक्ट के बाकी बैचेस हैं, वहां पर आपको भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। इन द सेकेंड केस जहां पर डज नॉट कंफर्म द ओएस रिजल्ट मीन्स आपका जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो ओएस रिजल्ट कंफर्म नहीं करती है, आपका असाइनेबल कॉज तो नहीं मिला है बट आपको लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया है कि सारा डाटा चेक किया है, उसके बाद आपको लग रहा है यार जो इनिशियल ओएस है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे केसेस में जो क्यूयू मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो इवोल्यूट कैसे करे। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ओएस की गाइडलाइन में कि मान लो आपको असाइनेबल कॉज तो नहीं मिल रहा है फिर भी आप बैच को कैसे रिलीज कर सकते हो। तो आपको मान लीजिए आपका रिजल्ट आया 89.6 है ना, 89.5% रिजल्ट आया और आपने बहुत सारा टेस्टिंग किया और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, आपको कहीं भी असाइनेबल कॉज नहीं मिला। फिर आपने जब रीटेस्टिंग किया तो आपको 99, 98, 99, 99.1 ऐसे करके आपको 6 रिजल्ट मिल रहे हैं। आपने उसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक किया, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के रिजल्ट्स आर गुड, डिसोल्यूशंस के रिजल्ट आर ऑल, सभी रिजल्ट आर अच्छे हैं। तो यहां पर ये पता तो चल रहा है कि यार इनिशियली कुछ तो गलती हुई है जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सच केसेस में क्यूए इवोल्यूट करके बैच को रिलीज कर सकती है जहां पर असाइनेबल कॉज तो नहीं है बट आगे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं और आपके जो बाकी के सपोर्टिंग टेस्ट हैं उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे में शायद क्यूए डिसीजन लेके बैच को रिलीज कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि एफडीए ने अपनी गाइडलाइन में दिया हुआ है। यह एफडीए कॉशंस की बात करती है कि आपको बाबा क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एवरेजिंग रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सैंपल प्रिपरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल, इसमें 3 भागों में डिवाइड किया है। एवरेजिंग रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सैंपल प्रिपरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल सैंपल, अब आपका एक सैंपल तो ओरिजिनल है बट यहां से आपने डिफरेंट प्रिपरेशन की हुई है। तो अब आपने मान लीजिए आपकी एसटीपी में लिखा है कि आप ऐसे मान लीजिए ऐसे करना है और ऐसे करना है, तो आप बोलता है ट्रिप्लीकेट प्रिपरेशन करना है। अब ट्रिप्लीकेट प्रिपरेशन का एवरेज रिपोर्ट करना है। अब आपने क्या किया, ट्रिप्लीकेट प्रिपरेशन किया और उनको एनालिसिस किया और आपने उसका एवरेज रिपोर्ट करना। बट उस केस में क्या हुआ कि एक रिजल्ट जो है ट्रिप्लीकेट प्रिपरेशन वो पास फेल हो रहा है, बाकी 2 पास हो रहे हैं। एक फेल हो रहा है, बाकी 2 पास हो रहे हैं, एवरेज भी पास हो रहा है। ऐसे केसेस में आपको ये नहीं करना है कि यार आपने टेस्टिंग प्रोसीजर में तो लिखा है कि एवरेज ही रिपोर्ट करना है और एवरेज तो पास हो रहा है इसलिए ओएस की जरूरत नहीं है। तो एफडीए इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एफडीए बोलता है अगर 3 प्रिपरेशन किया है तीनों पास होना चाहिए और तीनों पास होगा तो एवरेज जरूर पास हो जाएगा। बट अगर एक भी फेल है 3 में से बट अगर एवरेज पास हो रहा है तो उस बैच को रिलीज नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको एवरेज रिपोर्ट करना है आपके इंडिविजुअल रिजल्ट भी पास होना चाहिए। एवरेजिंग रिजल्ट फ्रॉम सेम फाइनल सैंपल, अब आपने क्या किया कि एक ही सैंपल बनाया है और उसमें डुप्लीकेट इंजेक्शन मारे हैं। एक इंजेक्शन का रिजल्ट तो फेल हो रहा है, एक इंजेक्शन का रिजल्ट पास हो रहा है, एवरेज भी पास हो रहा है। अब आप जब आप देखोगे तो आपका जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें एवरेज जो 2 इंजेक्शन के एरिया आते हैं उनका एक एवरेज होता है, उससे रिजल्ट आता है। आपको इंडिविजुअल एरिया के इंजेक्शन से भी ऐसे देखना है, अगर वो उसमें से एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है बट एवरेज पास हो रहा है, ऐसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ऐसे में भी इन्वेस्टिगेशन आपको करना है। बॉर्डर राइज रिजल्ट दैट आर विद इन द स्पेसिफिकेशन, आपको ना उस प्रोडक्ट में हमेशा उस प्रोडक्ट के बैचेस में हमेशा 100% रिजल्ट आता है, अचानक 95-96% रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऐसे बैचेस को भी रिलीज नहीं करना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये 3 चीजें जो है एफडीए गाइडलाइन में बताई हुई है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जब आप एनालिसिस करते हो, कहां पर आपको ओएस इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अगर एक भी फेल हो रहा है एवरेज पास हो रहा है आपको ओएस इन्वेस्टिगेशन करना है। और अगर आपका बाउंड्री के रिजल्ट आ रहे हैं तो वहां पर भी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, इसमें भी ओटी इन्वेस्टिगेशन, बट आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। पास डजन मीन की पास हो रहा है तो आप रिलीज कर दो। और सबसे लास्ट में एफएआर के बारे में, ओएस इन्वेस्टिगेशन में एफएआर के बारे में बात की हुई है। फॉर दोज प्रोडक्ट दैट आर सब्जेक्टेड of an approved new drug application, evaluation new drug application regulation required submit within 3 working days a field alert report। 3 दिन के अंदर, जब भी आपको वो 3 दिन के अंदर आपको एफएआर सबमिट करना है। ऑफ
इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनी फेल्यूअर डिस्ट्रीब्यूटेड बैच टू मीट एनी ऑफ द स्पेसिफिकेशन। तो जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, आपको कमर्शियल स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे कोई ओएस होता है, तो आपको 3 वर्किंग डे के अंदर अगर आपको वो ओएस का कॉज नहीं मिलता है, आपको ओएस इनवैलिड नहीं होता है, आपको एफएआर सबमिट करना है। और जब तक आप ओएस इन्वेस्टिगेशन करते रहते हो, आपको जो है कंटिन्यू जो है एफएआर का अपडेट करते रहना। ओएस test result on this product are considered to be one kind of information concerning and failure described in the regulation unless the OS result on the distributed batch is found to be invalid within 3 days and initial FAR should be submitted. So अगर मान लो अगर 3 दिन में इन्वेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं होता है तो आपको इनिशियल FAR सबमिट करना, उसके बाद फॉलोअप FAR भी आपको सबमिट करते रहना है। तो ये FAR का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पूरा ओएस का गाइडलाइन, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो सारा का सारा ओएस की गाइडलाइन से ही कॉपी किया। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। शायद ये एफडीए का नया गाइडलाइन है और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एफडीए का जो ओएस का गाइडलाइन है उसमें क्या बोला गया है, और आपको ओएस इन्वेस्टिगेशन में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।